एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख राम रहीम। गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में है राम रहीम। अपनी मां का हाल जानने के लिए राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा है। राम रहीम को मिली है 48 घंटे की पैरोल। मां की सेहत का हवाला देकर ये पैरोल मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको आज की बता रहे हैं। जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख राम रहीम, जो साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में सुनारिया जेल में सलाखों के पीछे है। लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि पैरोल पर अब राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। 48 घंटे की पैरोल दी गई है। मां की सेहत का हवाला देकर ये पैरोल मांगी गई थी, जिसके बाद अब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ गया है और इस वक्त गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में मौजूद है। अपनी मां का हाल जानने के लिए गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा है। 48 घंटे की पैरोल मिली है। तो बड़ी खबर आपको आज की बता रहे हैं। गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली है। लंबे वक्त बाद गुरुग्राम में राम रहीम पहुंचा है। मां की सेहत का हवाला देकर जेल से बाहर निकला है गुरमीत राम रहीम। साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में जेल की सजा काट रहा है और इस वक्त बड़ी बात यह है कि 48 घंटे की पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिली है। सारी सैटिंग है ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 48 ਦੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ 48 ਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜਦੋਂ SIT ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ SIT ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो पंजाब जेल मैनुअल है जी, उसके मुताबिक उसके रूल्स के मुताबिक अगर किसी कन्विक्ट को हालात को मद्देनजर देखते हुए पैरोल मिलनी चाहिए तो वो किसी को भी मिल सकती है जी। लेकिन ये जो बाबा राम रहीम सिंह का केस है ये एक्सेप्शनल टाइप में आ जाता है, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने आप को हर एक तरह से श्योर कर लेना चाहिए कि कोई दंगा ना हो जाए या एक्यूज्ड वापस कस्टडी में ही ना आए तो अपनी सजा भुगतने के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए उसको पैरोल अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझती है, सरकार समझती है, तो जेल रूल्स के मुताबिक अगर कोई प्रोसीजर है तो वह उससे मिल सकती है। तो राम रहीम को पैरोल मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि राम रहीम अब जेल से बाहर आ गया है, गुरुग्राम में मौजूद है। कई लोगों की तरफ से पैरोल का विरोध किया जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम रहीम अगर बाहर है तो हिंसा भी भड़क सकती है। बिल्कुल, देखिए राम रहीम जो है सुबह 8 बजे के आसपास जो है मानेसर के एक
अपने परिचित के फार्म हाउस में पहुंचा है, जहां उसकी मां पहले से मौजूद है। 48 घंटे की पेरोल मिली है और उसने यही दावा किया था कि उसकी मां बीमार है, उसकी देखभाल के लिए उसे पेरोल चाहिए। तो उसके आधार पर जो 48 घंटे की पेरोल मिली है उसमें वो गुरुग्राम पहुंचा है। लेकिन कोशिश यही है प्रशासन की तरफ से भी कि कोई भी उसका चाहने वाला या फिर यूं कहें कि उसका भक्त जो है वो उससे ना मिल पाए और ना ही राम रहीम उन लोगों से मिल पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि राम रहीम के चाहने वाले बहुत हैं। और जब सजा सुनाई गई थी राम रहीम को, तब भी देखा था कि पंचकुला और सिरसा में दोनों ही जगह काफी हिंसा हुई थी, काफी लोगों की मौत भी हुई थी उस दौरान। तो दोबारा से इस तरह की परिस्थिति ना बने, इसलिए प्रशासन की तरफ से कड़ाई है कि किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जाएगा, ना ही राम रहीम को किसी और से मिलने दिया जाएगा। और इसीलिए राम रहीम जो है उस अपने परिचित के फार्म हाउस में ही सुबह से मौजूद है। अगले कुल मिलाकर 48 घंटे की जो पेरोल मिली है, इस दौरान राम रहीम को यही इस फार्म हाउस में ही अपनी मां के पास रहना होगा। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पैरोल मिल गई है, गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में फिलहाल मौजूद है। अंशुल छत्रपति भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंशुल छत्रपति रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप भी राम रहीम पर। एक लंबी लड़ाई अंशुल छत्रपति ने लड़ी है, लेकिन अब राम रहीम बाहर आ गया। अंशुल छत्रपति हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। क्या कुछ कहना है आपका अंशुल? जी कुसुम, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है राम रहीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा। ये कहीं ना कहीं मिली भगत करके इतनी रहमदिली जो दिखाई जा रही है राम रहीम के प्रति, ये दोबारा फिर से हरियाणा पंजाब को उसी आग के अंदर झोंकने का प्रयास किया जा रहा है जो हमने 25 अगस्त 2017 को देखा। हाँ, पूरे देश में देखा किस तरीके से राम रहीम ने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत 38-40 लोग जो हैं वो पुलिस की गोली से मारे गए और आम जनता ने जो सब कुछ सहा वो करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है वो स्वाह कर दी गई। तो ये सारा कुछ देखने के बावजूद अगर हम एक खूंखार अपराधी के प्रति इस तरह की रहमदिली और इस तरह की नरमी बरत रहे हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो हरियाणा सरकार की और नहीं हो सकती। तो ये हमारा सिस्टम का जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर है कि जो इतने लंबे टाइम से ये इतना नुकसान जो हुआ आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और हम फिर से उसके रिपीटिशन के लिए फिर से वही हालात पैदा कर रहे हैं। जी अंशुल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो राम रहीम पर दरिया दिली दिखाई जा रही है, रहम दिखाया जा रहा है, पैरोल दी गई है 48 घंटे की, जो एक ऐसे खूंखार अपराधी को नहीं दी जानी चाहिए। अंशुल छत्रपति का ये कहना है। आपको बता दें कि राम रहीम 48 घंटे के लिए पैरोल पर बाहर आया है, मां की सेहत का हवाला दिया है और इस वक्त गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में मौजूद है। हालांकि कई लोगों की तरफ से राम रहीम की पैरोल का विरोध भी किया जा रहा है। तो राम रहीम की पैरोल पर जत्थेदार का बड़ा बयान सामने आया है। राम रहीम को पैरोल देना इस वक्त गलत है, पंजाब का माहौल खराब करने की इससे कोशिश हो सकती है। सिखों के खिलाफ दोहरी नीति अपना रही है सरकार। सरकारों ने हमेशा धक्केशाही की है, ये कहना है हरप्रीत सिंह का, जो राम रहीम की पैरोल का विरोध कर रहे हैं। जत्थेदार का इसको लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राम रहीम की पैरोल को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि राम रहीम को पैरोल देकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक पासे साडे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ।